ان کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، ایک جانب سے مذاکرات کی پیشکش بھی کی جا رہی حکومت کی جانب سے، لیکن ساتھ ہی الزامات کا سلسلہ بھی جاری۔ کیا مذاکرات اور الزامات ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں جو باقاعدہ گتھی بنے ہوئے جس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹرانسمیشن میں صدیق جان میرے ساتھ موجود ہے، بیورو چیف اسلام آباد، اور ابھی شامت قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے۔ قریشی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ قریشی صاحب، بہت سے لوگ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی 150 200 300 400 500 یہ چلے 1000 لوگ نکلیں، لیکن لوگ تو بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آج میں فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر دکھانے دیں چینلز کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ بات تو حکومت کے حق میں جاتی ہے کہ جب چینلز دکھائیں گے کہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر گھبراہٹ کیسی ہے؟ قریشی صاحب، میرے خیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ قریشی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ۔ صدیق میں آپ ٹھیک ہے؟ قریشی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ شامت قریشی صاحب، میرے خیال سے قریشی صاحب نہیں سن پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صدیق جان، میں یہ سوال لے کے آپ کی طرف آتی ہوں کہ اگر واقعی تعداد اتنی کم ہے تو دکھا دیا جائے، جس طرح چودھری صاحب بھی کہتے ہیں، فواد چودھری، کیا گھبراہٹ ہے پھر کہ چینلز پہ نہیں دکھائی جا رہی؟ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی جی۔ ہلو، شامت قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے لیکن ان کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹیم، دوبارہ آپ کال کرنے کی کوشش کیے، لیکن چونکہ ہم لائیو ہیں تو مجھے ناظرین کو ساتھ ساتھ ایسے بتانا پڑ رہا ہے، ریکارڈڈ ٹرانسمیشن نہیں ہے۔ صدیق میں آپ کی طرف آ رہی ہوں یہ سوال لے کے کہ اب واقعی اگر تعداد اتنی کم جا رہی حکومت کی طرف، پھر حکومت اتنا پریشر کیوں فیل کر رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت جو مرضی کہے، لیکن میڈیا پر جو بھی کہے، لیکن آف کیمرہ جو ان کی میٹنگز ہیں اس کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو صورتحال پتہ چل رہی ہے، اس میں تو وہ خاصے پریشان ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ لاہور سے نہیں نکلے اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آئیں گے اور جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو نہ جانے کتنے لاکھ لوگ ان کے ساتھ انٹر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب وہ عمران خان کو انٹری پوائنٹ کے اوپر نہیں روکیں گے، جہاں تک عمران خان کو عدالت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے وہاں تک آنے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کو یہ صورتحال نہیں تھی۔ 25 مئی کو تو عدالتی احکامات کے باوجود ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، جبر کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، چار دیواری کے تقدس پامال کیا گیا، خواتین کے ساتھ جو ہوا، بزرگوں کے ساتھ جو ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا۔ اس بار وہ چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بار ہم مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور واقعی وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایسی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو روکنا ناممکن ہے کیونکہ ٹوٹل جو فورس ہے اسلام آباد کے پاس، پولیس، رینجرز، یہ سارے ملا کے وہ 13,000 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب 13,000 کی فورس لاکھوں لوگوں کو کیسے روکے گی؟ 7 انٹری پوائنٹس ہیں، ہر انٹری پوائنٹ سے لوگ انٹر ہو رہے ہوں گے، چارج کراؤڈ ہے، جذبہ ان کا آپ دیکھ لیں جتنی ہے، تو اس لیے پہلے تو نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روکا نہیں جائے گا۔ پھر دوسرا فیصلہ آپ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر یہ خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے جو کہ مذاکرات کرے گی۔ مذاکرات کی بات کرنا پڑی کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہیں سے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی انگیج کریں، عمران خان سے بات کریں، اور جب یہ بات پہنچی میاں نواز شریف تک کہ مذاکرات کا کہا گیا تو اب وہ برہم ہیں، وہ ناراض ہیں، مریم نواز ناراض ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں کرنے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے قریشی صاحب، اگر آپ مجھے اب سن پا رہے ہیں، پہلے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، تو یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود نہیں ہیں، پھر ساتھ ہی چینلز بھی نہیں دکھا پا رہے ہیں، تعداد کم بھی بتا رہے ہیں، تو دکھا دیں تعداد، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ آپ کے ساتھ لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ دیکھیے، اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ لوگ موجود نہیں ہیں تو ان کو تو پھر اور کوشش کرنی چاہیے کہ سب چینلز اس کو لائیو کوریج دیں، تو پھر تو لائیو کوریج کے راستے میں رکاوٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ یہ لائیو کوریج روکے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں، انہوں نے کبھی انٹرنیٹ سروس کو معطل کرتے ہیں، کبھی ہمیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں، میڈیا کی کوریج میں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہیں تو پھر شادیانے بجانے چاہیے اور مسرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں، اور اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ چینلز پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، لائیو یا ایز لائیو کوریج کتنے چینل دے رہے ہیں؟ بہت کم دے رہے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ حکومت کا دباؤ ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم بول کے شکر گزار ہیں
कि मुश्किलात के बावजूद और दबाव के बावजूद आप लोगों तक सही खबर पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो साइफर के मामले में आपको भी तलब किया गया, इस हवाले से मैं आपको कमेंट चाहूंगी। जी, नोटिस मुझे अभी मिला नहीं है, सुना है कि नोटिस दिया है, मैं उसका मुताला करूंगा और जी जी। अगर मैं समझता हूं कि मशावरत के बाद पार्टी के साथ, वकला के साथ मशावरत के बाद अगर जाना पड़ा तो जरूर चला जाऊंगा। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने ऑडियो सुनाई है अली अमीन गंडापुर साहब की। कुरैशी साहब, ये इस हवाले से एक तासुर दिया जा रहा है कि इससे पता नहीं आप लोगों के साथ असलहा भी आ रहा है और बड़ी मशीनरी और बड़ी तैयारी जत्थे आ रहे हैं, इसके हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूंगी, ऐसा क्यों तासुर दिया जा रहा है? गलत बात कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं। पहले आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की कि बहुत झगड़ा होगा, खून खराबा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल भी देखा कि हम लिबर्टी चौक से रवाना हुए और पूरे लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर हुआ हमारा पहला दिन। आज आपने देखा कि शाहदरा से रवाना हुए हैं और अब फिरोजवाला क्रॉस कर रहे हैं और मुरीदके की तरफ गामजन है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह आपने इस्तकबाल देखे, लोगों का जोशो खरोश देखा, पुरअमन था, कहीं कोई असला, बच्चे थे, खवातीन थी, लोग थे, बूढ़े माजूर थे, सब तमाम किस्म के तबकात मौजूद थे और एक मेले का, एक जश्न का समा था। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं न किसी चीज को तोड़ा गया, ना कहीं झगड़ा हुआ, ना नुक्स अमल पैदा करने की कोशिश की गई। तो हमने जो हमारा इरादा था कि पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे, हम उसके मुताबिक आगे चल रहे हैं। न जाने हुकूमत को ये तासुर क्यों जाता है कि खुदा ना खास्ता हम इस किस्म की चीजें करेंगे जो माजी में हमने कभी नहीं की और ना हमारा इरादा है। जी ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, सदीक जान अगर आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कल ये खबर आई थी कि एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि मुज़ाकरात भी करने को तैयार है, तो कोई राब्ता आपसे हुआ है हुकूमत की जानिब से? हेलो, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। शाह साहब ये बताइएगा, मैं ये पूछ रहा था। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए? जी दोबारा दोहरा दीजिएगा। कुरैशी साहब, सदीक जान पूछना चाह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया मुज़ाकरात के हवाले से? जी नहीं, जी नहीं, कोई फॉर्मल राब्ता मेरे इल्म में नहीं है। सिर्फ ये मीडिया से खबर मिली कि एक कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो उसकी नौइयत क्या है, वो कितनी बाख्तियार होगी, उसका एजेंडा क्या है, इसकी तफसीलात हमारे सामने नहीं आई और कोई बाकायदा हमसे राब्ता नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपसे बाकायदा राब्ता नहीं किया गया है, लेकिन अच्छा ये कमेटी की राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कमेटी के सरबराह हैं, पेशकश की गई है, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा कहती है मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये लोग एक पेज पर भी नहीं, क्या ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है? या कुरैशी साहब ये लोग खुद बुखलाहट का शिकार है, कंफ्यूज है? जब कोई खुद बुखलाहट का शिकार होगा तो फैलाएगा भी कंफ्यूजन। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंफ्यूजन का शिकार है और ये इस किस्म की गलत अफवाहें कल से फैला रहे हैं। इनका जो डिस इंफॉर्मेशन सेल है वो किस्म किस्म की खबरें घड़ता है। कभी कहता है कि जी इतने एमपीए जो हैं वो नाला होकर अलर्जी अख्तियार कर ली उनने, उनके बयानात आते हैं और वो तरदीद करते हैं तो फिर खामोशी इख्तियार करते हैं। कभी कहते हैं कि जनाब ये मुज़ाकरात की कमेटी बन गई है, कोई फॉर्मल न दावत है न हमारे इल्म में है। ये हमारे कारकुनान के अंदर, हमारे लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शोशे छोड़े जाते हैं। कभी कहते हैं पुरतशद्दुद होगा ये मार्च, लेकिन उसके बरक्स आप देख रहे हैं। माजरत के साथ आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप लोग हकीकी आज़ादी मार्च लेके सड़कों पर आ गए हैं, बड़ी तादाद में लोग भी आपके साथ मौजूद है, खवातीन बच्चे भी मौजूद हैं। उधर से हुकूमत इस तरह की बातें कर रही है कि जी आप लोगों के साथ जत्था और तैयारियां, मशीनरी, असला, तो इस तरह की बातें जब की जा रही है तो इसका मतलब वो तैयारी करके बैठे हुए। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर इंतशार होता है जिसके बारे में बारहा कहा जा रहा है, खान साहब ने भी कहा था कि हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा, हमारी तरफ से पूरा मन होगा, लेकिन वहां
वहां से ये किया जा सकता है इंतशार, तो फिर जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? उन पर जो लेकर चले हैं इमरान खान साहब, या फिर हुकूमत वक्त जिम्मेदारी कबूल करेगी? तो बड़ा लम्हा फिक्री है। देखिए, हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे, हमारी नीयत साफ है और इंशाल्लाह रहेगी। लोग जानते हैं किसका क्या रिकॉर्ड है, हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन रहे हैं और इन्होंने इस किस्म के तशद्दुद अमेज़ हरकतें इनकी हैं। मॉडल टाउन का वाकया इन्होंने कराया था, तो इन चीजों को सामने रखते हुए लोगों को फैसला करना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामुद कुरैशी साहब मौजूद थे। ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपकी आवाज शायद वो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन आपका सवाल उन तक पहुंचा। उन्होंने कहा जी उन्हें नहीं पता, उनके नॉलेज में नहीं कि कोई राब्ता किया गया है हुकूमत की जानिब से या फिर नहीं। अभी सदीक, आपको समझ के आ रही है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की जाती है? राना सना साहब अगर पेशकश कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश की जा रही है, मरियम और साहिबा कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुज़ाकरात नहीं होंगे, लोग एक पेज पर नहीं है। क्यों कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया था रात कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएं और उनको इंगेज किया जाए पॉलिटिकली। अब ये नहीं पता कि उनको ये अहकामात कहाँ से आए थे, किसका ये मशवरा था, किसका हुक्म था कि इमरान खान को इंगेज किया जाए, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। जब शहबाज शरीफ साहब ने एक 9 रुकनी कमेटी बना दी, फिर 2 लोग और ऐड किए, 11 रुकनी कमेटी बनी। तो जब ये खबर लंदन पहुँची तो लंदन को इत्तमाद में नहीं लिया गया था। उनको भी मीडिया के जरिए पता चला कि कमेटी बना दी गई है, तो उस पर नवाज शरीफ बरहम हुए और नवाज शरीफ ने कहा कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, कुछ इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात हैं। तो अब शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, जो शहबाज शरीफ हैं बतौर वज़ीर आज़म, वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है हुक्म है और मशवरा है, बड़ा तगड़ा मशवरा है, बड़ा तगड़ा हुक्म है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं करने। तो आप कौन अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर तो ये फैसला हो गया है और कि मुज़ाकरात करने हैं, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे, फिर मियां नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपने मेरे सवाल का आधा जवाब तो दे दिया। मैं ये पूछने जा रही थी कि ये वो सड़कों पे निकल चुके हैं, पहले भी बड़ा डिले किया गया इस लॉन्ग मार्च को, इस हकीकी मार्च को। लोग पूछते थे आपसे, हमसे, सबसे पूछते थे, इन लोगों से ज्यादा पूछते थे, अंदर से आवाजें आती थी कि क्यों डिले किया जा रहा है। तो सारी बातें, मुज़ाकरात या जो बैकडोर राब्तों की बातें होती थी, टाइम दिया जाता था, आपको भी पता है वजह होती टाइम देने की। अब ये निकल आए सड़कों पर, तो अब तो एक पेज पर आ जाना चाहिए। अब भी कंफ्यूजन है कि कोई ये चाहता है तो कोई वो चाहता है। इस टाइम पे ये वक्त नहीं है। देखें, इसलिए एक पेज पर नहीं है कि बहुत सारी जगहों पे मामला चल रहे हैं। आपको पता है कि असल में इख्तियार किसके पास है, फैसला कौन करेगा, हुकूमत को कौन लाया है, हुकूमत को कौन चला रहा है, इलेक्शन का फैसला किसने करना है। एक वो मकाम है, एक वो जगह है। एक शहबाज शरीफ साहब हैं जो डमी वज़ीर आज़म हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देखने की हद तक, सिग्नेचर करने की हद तक, तकरीरें करने की हद तक, ताज़ियतें करने की हद तक, मुबारकबादें देने की हद तक, दुआ खैर कहने की हद तक, ये छोटे मोटे काम उनको दिए गए हैं कि ये आप करते रहें वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठ के। फिर आसिफ अली जरदारी हैं जो ये समझते हैं कि असल में तो ये हुकूमत लाई हुए हैं, असल तो क्रेडिट उनका बनता है, असल तो इख्तियार उनके पास है, असल तो फैसले साजी का इख्तियार उनके पास है, वो अपने तौर पे वो करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम का सरबराह तो मैं हूँ, कायद और कप्तान तो मैं हूँ, सिपह सलार तो मैं हूँ, मेरे बगैर आप कैसे चल सकते हैं। और वो लंदन में बैठे हुए एक इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा जो शख्स एक बैठा हुआ है उधर, वो कहता है कि तुम क्या बेचते हो सारे, मैं अगर तकरीरें ना करता, मैं अगर धमकियां ना देता तो तुम लोगों के तो काम ही नहीं बनना था, फैसले तो मैंने करने। फिर मरियम नवाज साहब हैं, वो कहते हैं कि देखें क्राउड पुलर तो मैं हूँ, लोगों को तो मैं निकालती हूँ, मेरी तकरीर होती है तो लोग आते हैं, तो मैं मुझे भी ऑन बोर्ड रखें, मैं असल बताऊंगी करना क्या है। तो जब 7 जगहों पर फैसले हो रहे हों तो फिर यही होता है जो इस वक्त आपको मुल्क के अंदर नजर आ रहा है, और मुल्क इसकी कीमत भी चुका रहा है जो पिछले 7 माह में हुआ है। मुझे बताएं, अब जो भी मुल्क में आ जाए हुकूमत अगली, चाहे वो इमरान खान की आए ना आए, जो भी आए, जो भी आ जाएगा, कई बरस लगेंगे उसको मुल्क को इस दलदल से निकालने में, जिस दलदल में फेंक दिया गया मुल्क को, जितना मुल्क को कमजोर कर दिया गया, मुल्क की बुनियादें हिला दी गई इन 7 माह के अंदर। क्यों? क्योंकि जिनको मुसल्लत किया गया उन्होंने मुल्क का तो सोचा ही नहीं है, उन्होंने आवाम का तो सोचा ही नहीं है। वो तो पिछले 7 माह में वो तो अपने काम करते रहे हैं, उन्होंने तो सारे अपने काम कर लिए हैं। मरियम नवाज को बरी करवा लिया, कैप्टन सफदर को बरी करवा लिया, शहबाज शरीफ बरी हो गए, हमजा शहबाज बरी हो गए, नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, मरियम को पासपोर्ट वापस मिला, वो बाहर चली गई, ईवीएम खत्म हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट खत्म हो गए, नैब खत्म कर दिया, एनआरओ ले लिया, लूट मार कर ली, पिछली जिसको आम अल्फाज में एनआरओ 2 कहा जा रहा है जारी है, बंदर बांट कर ली, ओहदे तकसीम कर दिए, माल बनाया जा रहा है। तो उन्होंने तो अपनी जात के लिए सारा कुछ किया है, इन सारों ने, मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मुल्क में तो आप देखें, बिजली की कीमतें देखें,
آٹے کی قیمت دیکھیں، سبزیوں کی قیمت دیکھیں، گوشت کی قیمت دیکھیں، ہر چیز ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کی آپ دیکھیں، بجلی کے بل آپ دیکھیں، پیٹرول اور ڈیزل آپ دیکھیں، گیس دیکھیں، بحران دیکھیں، مشکلات دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، ظلم دیکھیں، جبر دیکھیں، زیادتی دیکھیں،